Psalm 32, भजन 32. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Psalm 32. Blessed is he whose transgression is forgiven, Amen. Hallelujah. whose sin is covered. Blessed is the man unto whom the Lord imputeth not iniquity, and in whose spirit there is no guile. When I kept silence, my bone waxed all through my roaring all the day long. For day and night thy hand was heavy upon me, my moisture is turned into the drought of summer. Yes. I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgivest the iniquity of my sin. For this shall everyone that is godly pray unto thee in a time when thou mayest be found. Surely in the floods of great waters they shall not come nigh unto him. Amen. Thou art my hiding place. Thou shalt preserve me from trouble. Amen. Thou shalt compass me about the songs of deliverance. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. Be ye not as the horse or as the mule, which have no understanding, whose mouth must be held in with bit and bridle, lest they come near unto thee. Many sorrows shall be to the wicked, but he that trusteth in the Lord, mercy shall compass him about. Amen. Amen. Be glad in the Lord Hallelujah. and rejoice. Be righteousness and shout for joy, all ye that are upright in heart. Amen. May the Lord bless you with his holy words. Thank you, Lord. Thank you. Hallelujah, Lord. भजन 32। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया Yes, और जिसका पाप ढापा गया हो। Lord. क्या ही धन्य है वह मनुष्य Uh-huh. जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले जी हाँ. और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल सी झुर्राहट बन गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया धन्यवाद. और अपना अधर्म न छिपाया Yes. और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, Uh-huh. तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। धन्यवाद. इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। जी हाँ. निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, जी हाँ. तू संकट में मेरी रक्षा करेगा। हालेलुया. तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। हालेलुया. मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा।
मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। Hallelujah, Lord. तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। Lord. दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, बहुत पीड़ा होगी। परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है हाँ, वह करुणा से घिरा रहेगा। हालेलुया। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। आमेन। Hallelujah. This is a beautiful psalm for you and I, not only just during COVID-19, but throughout your life on this earth. और ये भजन न केवल इस कोविड-19 के समय परंतु जीवन पर्यंत आपके लिए बहुत ही लाभप्रद और एक खूबसूरत भजन है। If you have a good translation Bible, you will see 3 times the word Selah has come in this psalm. यदि आपके पास अच्छा अनुवाद का बाइबल है तो 3 बार आप देखेंगे जो सेला शब्द है यहाँ पर आता है। It means you can divide this psalm into 3 sections. इसका मतलब आप इस भजन को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। Or the writer is taking from one thought and is asking you to take a pause before you take the second thought. इसका मतलब एक विचार को लेता है, फिर वो चाहता है कि आप थोड़ा अंतराल लें और उसके बाद फिर दूसरे विचार में जाएं। Next Sunday, I'll pick up 3 words from the first section. और आगामी रविवार में मैं पहले भाग से 3 शब्दों को लूंगा, Because a lot of people, they have no idea about these 3 words. क्योंकि बहुत से लोगों को इन 3 शब्दों के बारे में कुछ भी नहीं पता। Transgressions, और अधर्म, sin, पाप, and number 3 is iniquity. और तीसरी बात वो पाप के कार्य या अधर्म के कार्य। जिसका अपराध, जिसका पाप और जिसकी आत्मा में कपट ना हो, उसके पहले लिख दिया जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। Most of the people, they will put these 3 words into one, or they will group them into one. और बहुत से लोग इन तीनों शब्दों को एक ही समझते हैं, उसे एक ही बात मानते हैं। I will make it very simple. Next Sunday, all the 3 words are different. ये तीनों शब्दों को लेकर मैं समझाऊंगा कि ये एक ही बात है, अलग नहीं है। And then I will add to that, which my wife was reading, and I looked at another translation this morning just now. Guile. What do you mean by there is no guile? और कोई दोष नहीं, एक अनुवाद में मैंने पढ़ा, उसका मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा। So we'll take 4 words. तो 4 शब्दों को हम लेंगे, Transgressions, अधर्म, sin, पाप, iniquity, दुष्टता के कार्य guile. और दोष। And then we'll enjoy this psalm reading. और इस भजन के पठन का हम आनंद उठाएंगे। Now, I was reading this morning in my prayer time, devotion time. अपने मनन के समय आज सुबह मैं पढ़ रहा था, I heard more than 12 times this psalm from my wife. अपनी पत्नी के द्वारा लगभग 12 से भी ज्यादा बार मैंने इस भजन को सुना, But one word caught my attention today. लेकिन एक शब्द ने आज मेरे ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। That word is blessed, or people say here blessed. और जो धन्य शब्द है यहाँ पर आया है, We have a sermon on the mount, and then you will see beatitudes in book of Matthew. अब मत्ती की इंजील में देखेंगे पहाड़ी उपदेश दिए गए हैं। Everyone thinks that beatitude is only in the New Testament. बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये आशीष वचन जो है केवल नए नियम नहीं है, But in Psalm, just in Psalm, book of Psalms, you will see 25 times minimum, 25 times the word blessed has come. 25 बार आप देखेंगे भजन में आशीषित या धन्य शब्द आया है। I just want to give you few this morning, मैं उनमें से कुछ बातें आपको बताऊंगा आज, and then
no exposition. कोई व्याख्या नहीं होगी। I will just read and put an emphasis on the special word in that passage. मैं केवल पढ़ूंगा और कुछ विशेष भागों में जोर देकर आपको बताऊंगा। I call it beatitude in Psalms. भजन में आशीष के वचन या आशीर्वाद के वचन मैं कहूंगा। And I want to let you know, it's not just when you read Revelation you are blessed. और ये मैं आपको बता चूंगा, ना केवल जो आप पढ़ते हैं और उसके ज्ञान को समझ को पाकर आप आशीषित हो जाते हैं। A lot of people, because it says there, those blessed is the one who reads aloud the words of this book which is Revelation. धन्य है वे जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ते हैं। I believe those who will read Psalm, they are also blessed. मैं ये मानता हूँ कि ना केवल प्रकाशित वाक्य जो भजन की पुस्तक पढ़ते हैं वे भी आशीषित होंगे। I never preached on this word in last 40 years. पिछले 40 वर्षों में मैंने कभी भी इस वचन पर, इस बात पर प्रचार नहीं किया। I preached in my own church from Psalm 1, और पहले भजन से अपने खुद की कलीसिया मैंने प्रचार but किया, I never thought about the beatitudes of Psalm. लेकिन भजन में आशीर्वाद के वचन, आशीषों के वचन का मैंने कभी भी नहीं सोचा। Let's pick up Psalm 1, आइए हम पहला भजन लें, verse 1. 1 का 1। Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. क्या ही धन्य है वह पुरुष Uh-huh. जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता Uh-huh. और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। But his delight is in the law of the Lord. I'm putting an emphasis. His delight is in the law of the Lord, and his law he meditates day and night. परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। Who is the happy person, blessed person, fortunate person? कौन है सौभाग्य पाया हुआ या आशीषित व्यक्ति या प्रसन्न व्यक्ति? Who's walking, who's sitting and standing in the right place. जो सही स्थान पर खड़ा होता है, सही स्थान पर बैठता है और सही स्थान पर चलता है। Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। If you want to be blessed in your home, यदि आप अपने घर में आशीषित होना चाहते हैं, if you want to be blessed in your business, यदि आप अपने व्यवसाय में आशीषित होना चाहते हैं, check your walk, आप अपने चाल को जांचें, check your sitting, अपने बैठने को जांचें and check your standing. और अपने खड़े होने को जांचें। Where you are walking, आप कहाँ चल रहे हैं, with whom you are walking, किसके साथ चल रहे हैं, what is your destination, आपका गंतव्य स्थल क्या है, where you are sitting, आप कहाँ बैठ रहे हैं, with whom you are conversing, आप किसके साथ चर्चा कर रहे हैं, check it. जांचें। Everything depends what you do. जो कुछ भी आप करते हैं इस बात पर आधारित है। Blessing is there. आशीषें आएंगी। Blessing, God wants to pour out His blessing on the believers. परमेश्वर आशीषें विश्वासियों के ऊपर उंडेलना चाहता है, But He puts up conditions. लेकिन वहां पर वो शर्त भी लगाता है। Number 4, He says, those who delight in the law of the Lord. जो लोग यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होते हैं, If you take time to meditate and delight in His word, यदि आप उसके वचन से आनंदित होते और मगन होते हैं, you are blessed. आप आशीषित। Amen. Hallelujah. I said many times, my dad and mom delighted to read the word of God. और मेरे माता पिता कई बार मैंने ये बात बताया कि वचन को पढ़कर वे आनंदित प्रसन्न होते थे। My wife delights in reading the word of God. मेरी पत्नी परमेश्वर वचन को पढ़ने से आनंदित होती है। And then for her, if she does not spend 2 hours, she gets bored. और उनके लिए यदि वो 2 घंटा वचन में ना बिताएं तो वो
बहुत ही ऊब जाते हैं। We are blessed in our home. हम अपने घर में आशीषित हैं, And we are blessed in our finances. अपने अर्थव्यवस्था में आशीषित हैं, And we are blessed in our clothes. अपने वस्त्र में हम आशीषित हैं, Everything is blessed. हर एक बात में हम आशीषित हैं, Because we have made a decision, we will delight in the law of the Lord. क्योंकि हमने ये निर्णय लिया है कि हम परमेश्वर की व्यवस्था से आनंदित होंगे And I enjoy meditating the word of और God. मुझे मनन करना बहुत पसंद है। Even this morning when I woke up, और आज सुबह जब मैं उठा I read for a few hours, और कुछ घंटे के लिए मैं पढ़ा and then I was just meditating on the word. और फिर उस वचन पर मैं मनन कर रहा था। Whatever I have read, जो कुछ मैंने पढ़ा है I started meditating. मैं उस पर मनन करने लगा। That's why this word caught my attention. इसलिए इस शब्द ने मेरे ध्यान को आकर्षित कर लिया। Don't just go and read it. आप केवल यूं ही उसे पढ़ना As दें। a believer, listen to me. विश्वासियों ध्यान से सुने। I will be more happy to hear you took one psalm and you're reading for 2 weeks till that psalm becomes part of your life. और मैं बहुत ही प्रसन्न होगा यदि ये सुनूं कि आपने एक भजन लिया 2 सप्ताह पढ़े जब तक वो भजन आपके जीवन का एक अंग न बन जाए। Yes, you will be called. You shall be blessed because you do first 5 things from Psalm 1. क्या भजन 1 से पहली 5 बातें करते हैं, इसलिए आप आशीषित होंगे। I want you to go with me to Psalm 2, मैं चाहूंगा भजन 2 में आप आ जाएं, verse 12. उसकी 12 आयत। पुत्र को चूमो, Uh-huh. ऐसा न हो कि वह क्रोध करे Uh-huh. और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ, अब आ जाएगा, उसके बाद आना चाहिए। क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। अब ध्यान से सुनना विश्वासी, अंतिम भाग हम पढ़ने जा रहे हैं। धन्य है वे धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। Bible says in English, I want to have this passage. Blessed are those who take refuge in Him. धन्य है वे लोग जो उसमें शरण लेते हैं। In the time of COVID-19, कोविड-19 के इस दौर में, in the time of difficulty, इन मुश्किलों के दौर में, in the time of इन challenges, चुनौतियों के बीच में people who take refuge in God shall be blessed. जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वे आशीषित होंगे। I am blessed today मैं आज आशीषित हूँ because I have made a decision to make Jesus Christ as my refuge. क्योंकि मैंने निर्णय लिया है कि मैं यीशु को अपना शरण स्थान बनाऊंगा। Oh, God is my refuge. परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। When you make God as your refuge, you are blessed. जब आप परमेश्वर को अपना शरण स्थान बनाते हैं आप आशीषित It's not that you have a fancy car, इसलिए नहीं कि आपके पास बहुत ही अच्छी that you कार have है a fancy या motorcycle, आपके पास बहुत ही अच्छी बाइक or है you have the modern technology in your या home. आपके घर में अत्याधुनिक तकनीक है। I'm not against having the iPhone, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ कि आप आईफोन रखें, but I want to get this thought in your life. लेकिन मैं चाहूंगा कि विचार आपके जीवन में आ जाए। Believers, विश्वासियों believers, विश्वासियों जिनके कान हो वो सुन ले। हालेलुया। Those who have ears, listen to me today. जिनके कान हो वो सुन ले मुझे आज। If you make God as your refuge, यदि आप परमेश्वर को अपना शरण स्थान बनाते if you हैं, make God as your यदि refuge, आप परमेश्वर को अपना दृढ़ गढ़ बनाते हैं, you are blessed. आप आशीषित हैं। People will not think you are blessed लोग सोचेंगे कि आप आशीषित नहीं हैं because you don't have fancy clothes. यदि आपके पास अच्छे नए कपड़े नहीं हैं, Then you will not have a fancy church यदि building. आपके पास बहुत ही अच्छी कलीसिया की इमारत नहीं है। Who cares? कौन इसकी परवाह I करता है? believe we are the temple of the Holy Ghost. मैं मानता हूँ कि हम पवित्र आत्मा के We मंदिर are the हैं। temple of God. हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। As long we make God our refuge, जब जब तक परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, we are blessed हम people. आशीषित लोग हैं। As we are blessed हम people. आशीषित लोग हैं। Number 3, तीसरी बात, Psalm 32. भजन 32। I will not stress too much there, but just read. Blessed is the one whose transgression is forgiven, whose sin is covered. क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया जी हाँ, और जिसका पाप ढांपा गया हो। yes, we are blessed. आमेन। हम आशीषित हैं। I remember मुझे याद आता है some 65 years ago,
65 वर्ष पहले when I confessed my sin, cried before God, God has given me an assurance that my sins has been covered. परमेश्वर के सामने मैं रोया, मैंने गिड़गिड़ाया और परमेश्वर ने मुझे आश्वासन दिया कि तुम्हारे गुनाह क्षमा कर दिए गए। My transgression is being forgiven. मेरे अधर्मों को माफी मिल गई है। I will explain next week what is the meaning of word forgiven there. आगामी सप्ताह में यहाँ पर क्षमा का मतलब क्या है मैं आपको समझाऊंगा। Number 4, you will see in verse 2. चौथी बात आप दूसरी आयत में देखेंगे। Blessed is the man against whom the Lord counts no iniquity. धन्य है वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध जिसके पापों को परमेश्वर ने ढांपा है, जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। Hallelujah. धन्यवाद। Who are blessed? कौन है आशीषित? Those whose iniquity is under the blood of Jesus Christ. जो मसीह यीशु के लहू के अधीन पाए जाते हैं। Bible says he does not count that iniquity. और परमेश्वर उनके अधर्मों को नहीं गिनता। If your sins are forgiven यदि आपके गुनाहों को माफी मिली है, and transgressions are forgiven, आपके पापों को माफी मिली है, your iniquities has been forgiven, आपके दुष्ट के कामों को क्षमा मिली है, you are blessed. आप आशीषित हैं। I say you are blessed. आप आशीषित हैं। Those who have these three experiences जिनके पास ये तीन अनुभव हैं, in your home, अपने खुद के घर में, you can say with me, आप मेरे साथ बोल पाएंगे, I am blessed. मैं आशीषित हूँ। बोलिए, I am blessed. बोले मैं आशीषित हूँ। I am blessed. मैं आशीषित हूँ। Let's go to number 5. आइए हम पांचवी बात की ओर Make sure you write down the number because I'm just reading the scripture, that's all. केवल आयतों को पढ़ रहे हैं, आप उसके साथ बिंदु भी लिख I लें। didn't make any notes. I'm just opening the scripture and reading it. Yeah. कोई नोट्स नहीं है, बस Psalm 33 verse 12. 33 उसका 12। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया है। Two things are mentioned here. दो बातें यहाँ पर दी गई है। Blessed, देखिए हिंदी में क्या है? क्या ही धन्य है वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। Hallelujah. आमेन। Blessed is the nation whose God is the Lord. धन्य वे जाति है जिसका परमेश्वर यहोवा है। Number 2, blessed is the person whom he has chosen as his heritage. जिसको परमेश्वर ने अपना निज वंश होने के लिए चुना है, वो आशीषित है। You will not understand. We have a great heritage. एक बहुत ही बड़ा मिरास हमारे पास है। We say very proudly. हम बड़े ही गर्व के साथ My बोलते हैं। grandpa was a pastor. मेरे जो दादा थे वे पासवान थे। My dad was a pastor. मेरे पापा पासवान थे। So I say we have a great heritage. एक बहुत ही अच्छा मिरास हमारे पास है। You and I, आप और मैं, listen to, we are the great heritage for our Creator, our Redeemer, our Savior. He said, you are my heritage. और हमारे छुड़ाने वाले के लिए, परमेश्वर के लिए, हम बचाने वाले के लिए एक बहुत ही बड़े मिरास है। हम उसके नीच वंश हैं। You didn't make a choice to become His heritage, आपने कोई चुनाव नहीं किया कि आप उसके मिरास या but वंश God हैं। has made this choice. लेकिन परमेश्वर ने ये चुनाव किया है। We are blessed. We became the heritage of God. हम आशीषित हैं क्योंकि हम उसकी मिरास, उसका वंश हम बन चुके Have you हैं। thought about that? क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा है? We are. हम उसकी हिंदी में कैसा है वो? निज भाग। हम उसके निज भाग होने के लिए उसने हमें चुन लिया है। हालेलुया। हम चुने हुए निज भाग हैं। आमेन। हालेलुया। Go to Psalm 34. भजन 34 में आ जाए। Second half of 34. हालेलुया। उसकी स्तुति 34 का 8वें में आ जाए। 8वां वचन में आ जाए। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। जो उसकी शरण लेता, आगे जाए। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती।
Very important for you and I to see what of God says here. वचन में यहाँ क्या लिखा है आपके और मेरे लिए बहुत जरूरी है ना- कि हम समझें। Again, we have to see the original translation. That's why I'm trying to King James. मूल अनुवाद हमें देखना बहुत Says, जरूरी है। blessed is the man that trusted in him. धन्य है वह व्यक्ति जो उस पर भरोसा रखता है। Hallelujah. धन्यवाद। If you have a trust in the Almighty God, यदि आप पराक्रमी परमेश्वर पर भरोसा रखते I हैं, say, if you trust in the Almighty God, यदि आप पराक्रमी परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, you may not have a FD or a bank account, हो सकता है आपके पास कोई एफडी या कोई बैंक का खाता भी ना हो, but you are blessed. आमेन। आप आशीषित हैं। God is calling you, you are blessed. परमेश्वर आपको बुला रहा है कि आप आशीषित हैं, Not because of your education, आपकी शिक्षा के कारण नहीं, but because you put your trust in Him. क्योंकि आपने अपना भरोसा उस पर रखा है। Hallelujah. We हालेलुया। are blessed people. हम आशीषित लोग हैं। And we are blessed हम people. आशीषित लोग हैं। And we are blessed हम people. आशीषित लोग हैं। Sometime in your difficulty, you have to start saying these words. कई बार मुश्किलों के बीच में आपको इन बातों को बोलना जरूरी है। My wife tells the children, मेरी पत्नी इस बात को अपने बच्चों को बोलती है। she tells always, repeat some good thing every morning, every night. वो हमेशा ही बोलती कुछ अच्छी बातें सुबह और शाम बच्चों के साथ बोला कर। हमने बोलना चाहिए, ये नहीं कि आज नहीं है, तुमको पराठा मिला नहीं. Say, I am blessed. मैं आशीषित हूँ। When you get up on the bed, say, I am जब blessed. आप सुबह उठते हैं आप बोले मैं आशीषित हूँ। Before you go out in the world or the city, say, I am blessed. बाहर जाने के पहले आप ये बोले मैं आशीषित हूँ। When you take your wallet, say, I am blessed. जब आप अपने बटुए को लेते आप बोले मैं आशीषित हूँ। When you eat your breakfast, lunch and dinner, just think, I said all 3 meals. When you have 3 meals in a day, you can say to God, I am blessed. जब आप 3 बार भोजन करते हैं, नाश्ता, मध्याह्न का भोजन, रात्रि का भोजन, आप बोले परमेश्वर में आशीषित हूँ। When you put the name brand, belt and a shirt, say, I am blessed. जब आप अच्छी कंपनी का बेल्ट और शर्ट पहनते हैं आप बोले परमेश्वर को धन्यवाद। This morning also I was telling my wife, I am blessed. I can change kurta every day. और मैं अपनी पत्नी से कहा था आशीषित हूँ, प्रतिदिन वस्त्र बदल सकते हैं। People buy clothes for me. और लोग मेरे लिए कपड़े लेते हैं। I never asked for clothes. मैंने कपड़े के लिए किसी से कहा नहीं I have more than enough. और पर्याप्त से भी ज्यादा But I am है। blessed. लेकिन मैं आशीषित हूँ। I am blessed. मैं आशीषित हूँ। You know why I am blessed? आपको पता है क्यों? But I put my trust in क्योंकि Him. मैं अपना भरोसा उस पर ही रखता हूँ। Next Sunday you're going to hear a big testimony. और आगामी रविवार में एक बहुत बड़ी गवाही आप Big सुनेंगे। testimony. एक बहुत बड़ी गवाही आप It will सुनेंगे। shake people in Tarsus. और इटारसी में लोगों को हिला देगी ये बात, Because we have put our trust in Him. क्योंकि हमने अपना भरोसा उस पर And रखा। we have put our trust in Him. हमने अपना भरोसा उस पर रखा। My God is a good मेरा God. परमेश्वर भला परमेश्वर, And my God is a good मेरा God. परमेश्वर भला परमेश्वर, We are blessed people. हम आशीषित लोग हैं। Yes, we were under the curse. हाँ, हम श्राप में थे। I said, we were under the curse. हाँ, हम श्राप में थे Condemnation was upon और us. दोष हमारे ऊपर था। But I'm going to tell लेकिन you, मैं आपको my बताऊंगा, curse has been मेरा removed. श्राप हट गया है। My condemnation has been पर removed. दंड का आरोप था, No हट गया more है। condemnation. अब कोई आरोप नहीं। I am blessed. हालेलुया। I say I'm blessed. मैं आशीषित हूँ। You are blessed. आप भी आशीषित। Your children are blessed. आपके बच्चे Psalm 40. भजन 40 आ जाए Psalm 40 निकालें. Psalm 40. भजन 40 Hallelujah, Lord. Psalm 40 verse 4. 40 का 4। क्या ही धन्य है वह पुरुष हाँ. जो यहोवा पर भरोसा रखता है आ गया, बहुत आ गया. दूसरा उसमें पढ़ लो क्या है. और अभिमानियों और मिथ्या की और मुड़ने वालों की और मुंह न फेरता हो। Not only you are blessed when you trust God, ना केवल जब आप यहोवा पर भरोसा रखते हैं, but who does not turn to the proud, लेकिन जो घमंडी की तरफ नहीं मुड़ता, and to those who go astray after a lie. और जो लोग झूठ के पीछे भटक जाते हैं उनकी ओर नहीं जाता। झूठे भविष्य से निकल गए. बहुत झूठे भविष्य से निकल गए. समझना है. If you follow after them, you are cursed. यदि आप ऐसे लोगों के पीछे जाते हैं आप श्रापित हैं। They don't have good family. उनके पास खुद का परिवार अच्छा नहीं They है, don't know how to manage their own family, अपने खुद के परिवार को कैसे चलाना है and उन्हें they नहीं are पता, trying to teach other people. और फिर दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं। Listen to me, they are liars. आप ध्यान से सुनिए, ये झूठे लोग हैं।
Correct your home first. अपने खुद के घर को पहले आप And सुधारें then say something. और फिर आप कुछ बोले। Blessed is the person, two things I mentioned here. Those who does not go after the proud people. जो लोग घमंडियों के पीछे नहीं जाते। And number two, दूसरी बात, those who has no association with people who tell lies. और उन लोगों के साथ जिनका कोई वास्ता नहीं जो झूठ बोलते हैं। Hallelujah. हालेलुया। We'll make a decision. हम एक निर्णय लेंगे। Actually, I would like to change the word. Let's make a resolution. तो आइए एक प्रण हम लें। We will not associate with people who have pride. और जो लोग घमंडी हैं उनके साथ हम संगति नहीं करेंगे। Because if you spend too much time with them, something will rub up on you. यदि आप उनके साथ कुछ समय बिताएंगे, कुछ बातें हैं जो आप में लग जाएंगी। You'll pick up something of their habits. आप उनकी आदतों में से कुछ बातों को ले लेंगे। I remember one pastor went to America एक पासवान अमेरिका गए, मुझे याद आता है। and then he came back to our convention फिर हमारे अधिवेशन में वापस आए वो, and he comes to me, he says, Dr. Thomas, do you see this jeans I got from America? और फिर वो बोलते हैं, डॉक्टर थॉमस क्या आपने ये जीन्स देखा, मैं अमेरिका से लेके आया। And you know, if somebody comes to me with like that, और इस रीति से जब कोई मेरे पास आते हैं, I said, let me see the name. मैंने बोला नाम देखने दो I मुझे। said, we never buy those clothes. हम बोले ऐसे कपड़े हम कभी लेते ही नहीं। Listen to me. आप ध्यान से He सुनिए। was showing off in the convention. अधिवेशन में वो दिखा रहे थे। The one who said we should never use jeans, he preached we should never put the jeans. Now he's showing off his jeans. ये वही है जिन्होंने प्रचार किया कि जीन्स नहीं पहनना चाहिए, अभी वो दिखा रहे हैं। I cut myself off from that person. ऐसे लोगों से मैं अपने आप को अलग कर लेता I हूँ। don't have time for those people. समय नहीं है ऐसे लोगों के लिए मेरे पास। जहाँ देख लिया कि घमंडी है, मुझे मालूम घमंडी का घर खाली रहेगा. Why I should associate with him? तो उनके साथ मैं क्यों संगति करूं? I want to be called blessed all the time. मैं सदैव आशीषित ही कहलाना चाहता Not हूं। only from Psalm 1, ना केवल भजन 1 से, that tells me my walking, my sitting, my standing, जहाँ लिखा है मेरा चाल, मेरा बैठना और मेरा खड़ा होना, my delighting and my meditating. मेरा आनंदित होना और मेरा मनन करना। But I'm blessed because of my association. लेकिन मेरी संगति के कारण भी मैं आशीषित Go हूं। to Psalm 41. भजन 41 में आ जाए। Before I read, now this is not my principle. और ये मेरे खुद के नियम नहीं है, It is biblical principle यह बाइबल आधारित नियम है which we have applied in our life. जो हमने खुद के जीवन में लागू किया है। Let me repeat again. एक बार और दोहराएंगे, This is not my principle, यह मेरे नियम नहीं है, but this is God's principle. लेकिन यह परमेश्वर के नियम And है। we took those principles and we are putting in our life. हमने उन नियमों को लेकर अपने खुद के जीवन में लागू किया है। पढ़िए 41 का 1 पढ़ती है। क्या ही धन्य है वह हाँ जो कंगाल की सुधि रखता है, हाँ विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। हालेलुया। आमीन। मैंने कहा हालेलुया। हालेलुया। Blessed is the one who considers the poor. जो गरीब की निर्धन की सुधि लेता है। My father-in-law has taught all his children to take care of the poor people. मेरे ससुर जी ने हम अपने सारे बच्चों को सिखाया है कि तुम निर्धन की सुधि लो। Every time we see someone really poor, we have to bless that person. जब भी हम किसी को देखते हैं बहुत ही निर्धन है, हम उन्हें आशीषित करना It's चाहते हैं। not that they will put in the newspaper, इसलिए नहीं कि वो अखबार में इन बातों को डाल but दें, I want to keep that slogan from God. Blessed is that man, he considers the poor. लेकिन मैं अपने विषय में ये बात यहोवा से सुनना चाहता हूँ कि धन्य है व्यक्ति जो गरीब की सुधि लेता है। If you have not done, यदि आपने नहीं किया है, start doing something. आप ऐसा करना शुरू करें। And if you have not done, यदि आपने नहीं किया है, I challenge believers, मैं विश्वासियों आपको चुनौती देना चाहता हूँ, consider the poor. आप गरीबों की सुधि लें। Hallelujah. हालेलुया। My God is a good God. मेरा परमेश्वर भला My God is a good God. मेरा परमेश्वर भला Go to परमेश्वर। Psalm 65. भजन 65 में आ जाए। Psalm 65 verse 4. भजन 65 का 4। क्या ही धन्य है वह हाँ जिसको तू चुन कर अपने समीप आने देता है, हाँ कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हाँ हम तेरे भवन के अर्थात हाँ। तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होगे। Who are blessed? कौन है आशीषित? To those God chooses
to keep them close to Him. और जिसे परमेश्वर चुन लेता है कि अपने निकट रखे। It's not that we make choice to stay close to Him, ऐसा नहीं कि हम चुनाव करते कि उसके निकट हम रहें, but we are blessed when God chooses us to keep us close to Him. लेकिन तब आशीष है जब परमेश्वर हमें चुनता है कि हम उसके निकट रहें। Hallelujah! हालेलुया। We are most blessed, privileged, highly privileged people. हम सबसे आशीषित धन्य लोग हैं। I said we are highly privileged. हम बहुत ही ज्यादा धन्य लोग हैं। He has chosen you and I उसने आपको और मुझे चुन लिया है to keep us near to Him. कि हमें अपने निकट रखे। And there are many reasons why He wants you to keep near to Him. इसके पीछे बहुत से कारण हैं कि वो आपको अपने निकट क्यों रखना चाहता There is a message by itself there. है। ये अपने आप में एक संदेश है। But number one, सबसे पहली बात, so that He can have fellowship with you. ताकि वो आपके साथ संगति कर पाए, So that you can dwell in His courts. ताकि आप उसके आंगनों में निवास करने पाए। काय के निवास करने पाए, भाई साहब लिखा हुआ 4 आयत के अंतिम पढ़ लो। अतः तेरे पवित्र मंदिर हाँ के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त हो गए। हाँ। He shall be satisfied with the goodness of your house हालेलुया। and the holiness of your temple. वो हिंदी में बिगाड़ दिया हुआ। भवन के उत्तम उत्तम पदार्थों के द्वारा और पवित्रता के द्वारा आशीषित हो। Hallelujah. Who can come close to God? अब बताइए कौन उसके निकट आ सकता है? When you tell God, read Psalm 24. आपको समय मिलता है भजन 24 जाकर पढ़ें। So when He is choosing you to be near Him and He's calling you blessed, He wants that you live a holy life. वो ये भी चाहता है कि आपको चुनकर अपने पास रखे। पहली बात, आपको पवित्र जीवन जीना है। And number 2, enjoy and be satisfied with the goodness. और परमेश्वर की भलाई के द्वारा आप संतृप्त हो और उसका आनंद उठाएं। Hallelujah. हालेलुया। His goodness is always. उसकी भलाई सदैव हमारे साथ That's है। why Psalm says, इसलिए भजन में लिखा है, when we come close to Him, when we are near to Him, जब हम उसके निकट होते हैं, in His nearness we have the fullness of joy. निकटता में Amen. आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। Blessed is the person who is chosen by God to stay near to Him. धन्य है वह पुरुष जो चुना गया कि उसके निकट वो निवास करे। Are you close to Him? क्या आप उसके निकट हैं? Pray to God. आप प्रार्थना करें। I want to be a chosen vessel to be close to you or to near to you. और मैं चाहूंगा ये प्रार्थना करें, प्रभु एक चुना हुआ पात्र मुझे बना जो तेरे निकट निवास करने And God पाए। is a good God. परमेश्वर भला Go परमेश्वर। to Psalm 84, भजन 84 में आ जाए। 84 verse 4 and 5. 84 का 4 और 5। Hallelujah, Lord. 84, Psalm 84, 4 and 5. क्या ही धन्य है वे Uh-huh. जो तेरे भवन में रहते हैं, Uh-huh. वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। Now, blessed is the person who dwells in His presence. जो उसकी हुजूरी में निवास करता है। Very important for you and I. आपके और मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण। Why? क्यों? It says, singing your praise all the time. सदैव तेरी स्तुति की गीतों को गाते रहते हैं। I thank God I'm blessed. I can stay in His sanctuary. मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं आशीष को उसके उपस्थिति में मैं निवास कर सकता हूँ, So that I can praise Him all the कि time. मैं सदैव उसकी स्तुति आराधना कर पाऊँ। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Sometime early morning when I'm in my study room, कई बार भोर के समय जब अपने अध्ययन की कक्ष में मैं होता हूँ, no one there, my wife is not there, I'm alone in the room. कोई भी नहीं, मेरी पत्नी भी वहाँ नहीं, मैं अकेले रहता हूँ। What I do? मैं क्या करता हूँ? I sing. मैं गीत गाता हूँ। I will sing in my spirit. मैं अपनी आत्मा में गीत गाता हूँ। Why I sing? मैं क्यों गाता हूँ? I say, Lord, I am blessed. मैं कहता हूँ प्रभु मैं आशीषित हूँ। I can turn the air conditioner. मैं एयर कंडीशन I चालू can कर turn सकता the हूँ। air. मैं वायु ले सकता हूँ। I can turn the fan. मैं पंखा चालू कर सकता हूँ। God is a good God. मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है। You try it now. आप इसे अपने जीवन में आजमा कर देखिए। It's not that you have to be in 4 walls of a church building, ये नहीं कलीसिया की 4 दीवारी के बीच में आप रहें, but you are blessed when you are in the presence of God. लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति में है आप आशीषित हैं। And you will start praising God. आप परमेश्वर की स्तुति करना शुरू कर देंगे। Nowadays, pastors
and the leaders have to pump people to praise God. आजकल देखिए कि पासवानों को, अगुओं को विश्वासियों के अंदर हवा भरना पड़ता है कि वो उसकी स्तुति आराधना। But once you are soaked in, लेकिन यदि आप एक बार उसमें भर जाते हैं, when you are soaked in by His presence, क्योंकि उस उपस्थिति से आप भर जाते हैं, you will sing all the time. आप सदैव गीतों को गाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Look at verse 5. 5वीं आयत देखिए। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, Who are blessed? कौन है आशीषित? भाई साहब बोले, who are blessed? जो उससे शक्ति पाता है। If you get the strength from the Lord, you are blessed. हालेलुया। यदि आप यहोवा परमेश्वर से बल पाते हैं, Yes. आप आशीषित हैं। And those who will find the strength from God, they are blessed people. जो लोग यहोवा से बल पाते हैं, वे आशीषित होंगे। There are many scriptures. बहुत सी आयतें हैं, Let me give you maybe one or two. एक या दो मैं आपको दूंगा। They that wait upon the Lord shall renew their strength. वे जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। I am blessed मैं आशीषित हूँ because I get the strength. क्योंकि मैं बल पाता That's हूँ। why Paul said, इसलिए पौलुस ने कहा, I can do all things through Christ who strengthens me. मैं जो मसीह मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Now, don't stop there वहाँ आप रुके ना, because sometimes we just read that and we get excited. कई बार हम पढ़कर उत्साहित हो जाते हैं। But those whose mind and heart is focused to the highways of Zion, लेकिन जिनके मन, हृदय सियोन के राजमार्ग पर लगे हुए हैं, they are blessed. वे आशीषित हिंदी हैं। में क्या है? जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है, वे रोनी की तरह में जाती हुए उनको सोता का स्थान बनाते हैं। Those whose minds are focused on the highways of Zion. जिनके मन उस सियोन की सड़कों पर लगे हुए हैं। Hallelujah. हालेलुया। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। Hallelujah. सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, Hallelujah. जाएंगे हम अपने देश। We are blessed because our mind is saturated to the highways of Zion. हमारा मन सियोन की सड़कों पर राजमार्ग पर लगा है, इसलिए हम आशीषित। I'm just leaving the nuggets. You guys can study and get more out of this one. यहाँ पर मुख्य बातों को मैं रख रहा हूँ, आप चाहकर और भी अध्ययन कर सकते हैं। Psalm 89. और भजन 79 में आए। In 89 verse 15 says, 89 के 15 में लिखा है, पढ़िए भाई क्या साहब। ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। Who are blessed? कौन आशीषित है? Those who know the festal shout. हालेलुया। जो उस आनंद की ऊंचे स्वर से, आवाज से गाते हैं। For few weeks we are hearing the festal shout because his coming is coming very close. क्योंकि उसका आगमन बहुत ही निकट आता है, उसके पहले की पुकार हम सुन रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. It means you must know the rhythm, the sound and the music of his return. इसका मतलब उसके आमद का संगीत, सुर और उसकी धुन आपको पता होनी चाहिए। To understand you have to go to the Hebrew culture. यह समझना है तो आपको इब्रानी संस्कृति में जाना पड़ेगा। After the engagement, और सगाई के पश्चात bridegroom goes back to his home. और दुल्हा अपने घर वापस जाता है। It may take 9 months to 24 months to have the home ready to bring the bride. 9 महीने से 24 महीने तक लग सकता है पत्नी को, अपने जिससे उसने विवाह किया है, दुल्हन को वापस घर लाने में। There was no iPhone, no mobile phone, no phone, but the family of the bride will come to know when bridegroom is
is coming. तो वो तब उस बात को जान, उस दिन में कोई भी संचार का माध्यम नहीं था, लेकिन जब उसे लेकर के आता है तभी वो जानता है। They come in a big procession, वो एक बड़े जुलूस में ऐसे निकल कर आते हैं, shouting and singing. चिल्लाते हुए, गीत गाते हुए, And when they come close to their home, और जब वो घर के निकट आते हैं, people in the home will know this is the shout of the bridegroom, this is the singing of the procession. वे घर के लोग जान जाएंगे कि यह एक जय के ललकार का जुलूस है और अब वो आ रही है। अभी क्लास में देख सकते हैं, एक प्रकार की जब ढोलक बजाते हैं हम समझ जा रहे हैं दशहरा आ गया। एक प्रकार ढोलक बन जा, हमको मालूम है किसी की डेड बॉडी जा रही। From the sound you can tell what is going on. उस आवाज को सुनकर आप बता सकते हैं कि क्या चल रहा है। But blessed are those who know the sound of festal shout. लेकिन धन्य है वे लोग जो उस जय के ललकार की उस ध्वनि को पहचानते, उस सुर को जानते हैं। Hallelujah. हालेलुया। In the beginning, when they hear, it may be a little faint. और जब शुरुआत में सुनते हैं बहुत ही मध्यम, बहुत ही कम सुनाई देगा। But as the procession start coming closer जब वो and जुलूस closer, निकट आने लगता है, the shout, the singing become very loud. और वो जो आवाज है, ललकार है, गाने की आवाज है, ऊंची होने लगती है। And the bride in home, और वो जो दुल्हन घर में है, she gets so वो excited. बहुत ही उत्साहित हो जाती She है। has not seen the bridegroom, अब तक उसने दुल्हा को नहीं देखा but by है, listening to the song लेकिन उस गीत and को the music, सुनकर what she वो said, क्या बोलती है? my bridegroom cometh now. मेरा दुल्हा अब आ रहा है। We believers, वे विश्वासियों, we believers, हम we विश्वासी must हैं recognize the festal shout. और हमें पहचानना है उस जय की ललकार And we should को, recognize the festal उस joy. आनंद की ललकार को हमें पहचानना I है। want to let you know, मैं आपको बताना चाहूंगा, many things are happening in the world दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। that tells me वो मुझे बताते हैं my bridegroom is coming. मेरा दुल्हा आ रहा है। आने वाला आएगा, देर ना करेगा। अब थोड़ी देर रह गई है, Praise the Lord. मेरा दुल्हा आने वाला है। Amen, amen, amen. I want believer to recognize the festal joy, so you will hear you are blessed. अब विश्वासीगण इस बात को ध्यान में रखें कि आप पहचान लें उस ललकार को, ताकि आप अपनी निगाहें उस पर रखें। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। When you hear the music, I know when Salim is playing, I know which song they will sing. और जब वो संगीत देते हैं भाई सली, मैं जानता हूँ आप कौन सा गीत वो गाएंगे। You tell sometimes give me this key right away. People know what song they will sing. जब आप इस प्रकार की कुछ ध्वनि देते हैं, लोग समझ जाते हैं कौन सा गीत गाएंगे। I could hear the key of its और return. उसके आमद के उस संगीत के सुर को मैं सुन सकता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। आने वाला आएगा. Amen. I have Amen. recognized the voice. और मैंने उसकी आवाज को पहचान लिया You है। will see next Sunday. I'm going to, hopefully I can do that thing. I'm going to bring maybe 14 things how I know He's coming very close. चाहे तो आने वाले सप्ताह में इस बात को देखेंगे, 14 बातें कि जब उसकी आमद निकट आ रही है कौन कौन से चिन्ह हैं। That tells me वो मुझे बताते हैं He's coming very close वो now. बहुत ही निकट आ गया है। Every time I pick up a sign from the world, हर बार जब दुनिया से एक चिन्ह मैं देख लेता I हूँ, go to the Bible. बाइबल में जाता हूँ, I say, Lord, you're coming very वो close. बहुत ही निकट आ गया I'm है। excited. मैं बहुत ही उत्साहित हूँ। You know why I'm excited? आपको पता है मैं क्यों उत्साहित A हूँ? lot of people they are excited to see and they want to walk on the streets of gold. बहुत से लोग इसलिए उत्साहित हैं कि सोने की सड़कों पर वो चलना चाहते I हैं। know this is very expensive ring. मैं जानता हूँ बहुत ही महंगा यह बूटी है। मुझे आ रहा है आशीष झुकने में मुश्किल आ रहा है चलेगा उसको नीचे रखो जरा थोड़ा नीचे Yes, they want to walk on the streets of gold. हाँ, वो सोने की सड़कों पर चलना चाहते हैं, But the gold will be under my feet. लेकिन वो सोना मेरे पैर के नीचे होगा। I'm not going to heaven to walk on the streets of gold. और मैं स्वर्ग इसलिए नहीं जा रहा कि सोने की सड़कों पर चलूं। I'm not going to heaven to see my beautiful home. मैं अपने सुंदर घर को देखने स्वर्ग नहीं जा रहा। I'm not excited. मैं उसके लिए उत्साहित नहीं I हूँ। know He has taken more than 2,000 years to prepare my mansion. हाँ, लगभग मेरे भवन को तैयार करने के लिए उसे 2000 वर्ष लग चुके I have हैं। more than 2,000 years. 2000 वर्ष से ज्यादा लग People चुके are हैं। excited to see that mansion. और लोग उस
देख पाऊंगा। today I'm excited. लेकिन आज मैं उत्साहित हूँ। I'm going to see someone. मैं किसी को देखने वाला हूँ। And I'm going to see मैं someone. किसी को देखने वाला My हूँ। bridegroom. और अपने उस दूल्हे को And I'm देखने वाला going to हूँ। see my bridegroom. मैं अपने दूल्हे को देखने I'm going to वाला see हूँ। my मैं bridegroom. अपने दूल्हे को देखने The वाला one हूँ। who died for me. जो मेरे लिए बना है। The one who was attracted when I was sinful, enemy, unjustified. जब मैं पापी था, मैं शत्रु था, मैं अधर्मी था, और वह मेरी ओर I want to see him. मैं उसे देखना चाहता So हूँ। that's why I'm going to use for his festal shout. इसलिए उसके उस आनंद की ललकार के प्रति मैं बहुत जागरूक हो रहा हूँ। I'm getting ready. मैं तैयार हो रहा I'm हूँ। getting मैं ready. तैयार हो रहा हूँ। We will be out of all the trouble. इन सारे संकट से हम बाहर हो There जाएंगे। will not be COVID-19 वहाँ there. कोई कोविड-19 नहीं There will होगा। not be dengue fever वहाँ there. कोई डेंगू फीवर There नहीं will not होगा। be chikungunya there. वहाँ चिकनगुनिया नहीं There will होगा। not be any death there. वहाँ कोई मृत्यु नहीं I'm होगी। excited मैं उत्साहित हूँ। for the festal shout. उस जय के ललकार के लिए, Excited for the festal मैं उस shout. जय के ललकार के लिए आनंदित हूँ। I'm ready मैं तैयार हूँ to see my bridegroom. अपने उस दूल्हे को देखने के लिए। My wife and I together, maybe we will, I think she's praying that we will live together till we are 90. और मेरी पत्नी ये प्रार्थना कर रही कि 90 वर्ष तक हम एक साथ जिए। Her relatives lived till 105. और उनके रिश्तेदार 105 साल तक जिए। And they were talking. और वे बात कर रहे थे। It's not that they were in the bed like a vegetable, और वो सब्जी के समान बिछौने पर नहीं पड़े हुए थे। but they had the brain and they were talking. लेकिन उनकी मस्तिष्क जागरूक थी और वो बात कर You know why I'm रहे थे। excited for this festal shout? आपको पता है इस आनंद के ललकार के लिए मैं क्यों? With this bridegroom, I'm going to stay forever and मैं ever. हमेशा हमेशा के लिए अपने यहोवा प्रभु के साथ No separation. कोई अलगताई नहीं I'm होगी। excited. मैं उत्साहित I'm हूँ। excited. मैं उत्साहित हूँ। I can stay on this one. Let's go to Psalm 94 verse चाहे तो 4. इस पे रुक सकते हैं, लेकिन हम आगे के भजन जाएंगे। भजन 94 का 12. 94 का 12। 94:12. 94 का 12। Who are blessed? कौन है हे आशीष? यहाँ क्या ही धन्य है वह पुरुष हाँ। जिसको तू ताड़ना देता अरे है। नहीं भाई साहब, ये पढ़ना नहीं, ये पढ़ना नहीं। कहीं दूसरे जाके जाए ना, हम लोग 106 में पहुंच जाए, ये कहीं नहीं दिया। But this is part of your blessedness. लेकिन आपके धन्य होने का भी यह एक अंग है। Who are blessed? कौन है आशीषित? Who are blessed? कौन है आशीषित? जिसको ताड़ना है। You discipline. जो तेरे द्वारा सुधारे जाते हैं। Hallelujah. वो वर्ड हिंदी में निकालना नहीं। जो ताड़ना देता ना परमेश्वर से, those who receive discipline, ताड़ना, वे लोग जो परमेश्वर से ताड़ना पाते हैं, they are blessed people. वे लोग आशीषित हैं। When you receive discipline from God, जब आप परमेश्वर से ताड़ना पाते हैं, thank God. परमेश्वर का धन्यवाद। I'm blessed. मैं आशीषित हूँ। I'm blessed. मैं आशीषित हूँ। Sometimes God bring a sick. Listen to me carefully. ध्यान से सुनना. I didn't say every time you are sick, God wants to discipline you. हम ये नहीं बोले कि हर बार जब आप बीमार होते हैं, परमेश्वर आपका सुधार करना रात चाहता को है। 11:30 बजे के भैया खा लो, मंगोड़े खा लो, बीमार पड़ गए, परमेश्वर मुझे ताड़ा नहीं दे रहा। गलत, wrong. But there are some time in our life, God wants to discipline us. ये कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर हमें ताड़ना देकर सुधार करना चाहता है। When you are disciplined by God, जब परमेश्वर के द्वारा आप ताड़ना दिए जाते हैं, make a note for yourself in your mind. अपने दिमाग में आप इस बात को लिख लें, You are blessed. आप आशीषित हैं। You are blessed. That's why He आप is. आशीषित हैं। You are blessed children. That's why He is disciplining you. आप जो उसके बच्चे हैं, आप आशीषित हैं, इसलिए आप में वो सुधार कर रहा है। I thank God for the discipline He brings in our life. जो ताड़ना वो हमारे जीवन में लाता है, परमेश्वर का I धन्यवाद। thank God. मैं परमेश्वर का धन्यवाद I करता हूँ। thank God. परमेश्वर का धन्यवाद। I remember when my dad got sick, had a heart attack in Sweden, और स्वीडन में जब मेरे पिता बीमार हुए, उनको दिल का दौरा पड़ा and then he had a meningitis attack. और फिर मेनिंजाइटिस का अटैक भी उन्हें आ You know गया। what my dad said? आपको पता है मेरे पिता ने क्या कहा? Told the doctors there, वहाँ के डॉक्टरों को क्या कहा? thank God for this sickness. और धन्यवाद इस बीमारी के लिए। I never used to take the rest, मैं कभी भी विश्राम नहीं करता था, but now this is the best way God discipline will take us. लेकिन सबसे अच्छा तरीका है, परमेश्वर ने मुझे ताड़ना दी है, You मैं see आगे the बढ़ूंगा। attitude of a godly person. अब देखिए ईश्वर के भक्त का मनोभाव कैसा है। Hallelujah. हालेलुया। I'm blessed. मैं आशीषित हूँ। And I'm blessed. मैं आशीषित हूँ।
Last week I had a little problem with my blood pressure. गत सप्ताह में रक्तचाप थोड़ा बढ़ गया था। I said, thank God. धन्यवाद प्रभु, I can stay in the bed and relax. मैं बिछौने पर रुक कर आराम कर सकता हूँ। But my wife knows I cannot relax. लेकिन पत्नी जानती मैं इतना लंबा विश्राम नहीं करता। I want to study. मैं पढ़ना चाहता हूँ, I want to think. मैं सोचना I चाहता want हूँ, to meditate. मैं मनन करना चाहता I हूँ। said, this is from God. Take rest. ये परमेश्वर तरफ से है, आप विश्राम करें। I'm thankful and I'm blessed. मैं धन्यवादी हूँ और आशीषित I said, हूँ। I'm blessed. मैं आशीषित हूँ, I said, I'm blessed man. मैं आशीषित व्यक्ति हूँ। I have a blessed family. मैं धन्य परिवार मेरे पास है। God has disciplined. परमेश्वर ने मुझे ताड़ना दी। Go to Psalm 106. भजन 106 में आ जाए। Psalm 106 verse 3. 106 उसका 3। Hallelujah Lord. क्या ही धन्य है वे जी हाँ, जो न्याय पर चलते हाँ। और हर समय धर्म के काम करते हैं। Oh, who are blessed? कौन है आशीषित? Two things are mentioned here. दो बातें यहाँ पर दी गई है। Number one, पहली बात, who observe justice. जो न्याय को मानते हैं, न्याय पर चलते हैं। And next one, बड़ा ध्यान से सुने ना. Who do righteousness at all times. जो सदैव धार्मिकता के कार्य करते हैं, Today, not just Sunday morning, न केवल रविवार की सुबह, but every day, who live and do righteous things. जो हर एक दिन, हर एक पल धार्मिकता के कार्य करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। I say hallelujah. हालेलुया। You are called, or you shall be blessed. और आपको आशीषित कहा जाएगा, आप धन्य कहलाएंगे। Let's go to Psalm 112. भजन 112 में आ जाए। Psalm 112 verse 1. 112 का 1। क्या ही धन्य है वह पुरुष Uh-huh. जो यहोवा का भय मानता है। Now second one you can connect with Psalm 1. Blessed is the man who fears the Lord. जो यहोवा का भय मानता है वो धन्य है। Hallelujah. हालेलुया। Keep the reverence for the Almighty God. पराक्रमी परमेश्वर के लिए आदर, सम्मान। मेरे डैडी ने हम लोग को सिखाया जब हम लोग छोटे थे, डरना है तो यहोवा से डर लो. You should not fear for any man. और किसी मनुष्य से डरने की आवश्यकता नहीं। We should not have fear of any man. यानी मनुष्य किसी व्यक्ति से हमें डरने की आवश्यकता नहीं, Just fear God. केवल परमेश्वर से डरना है। When you fear God, जब आप परमेश्वर से डरते हैं, let me repeat, when you fear God, दोहराऊंगा, जब हम परमेश्वर से डरते हैं, you are blessed. आप आशीषित हो I said you are blessed. आप धन्य हो जाओ। Go to Psalm 119, भजन 119 में आए, 1 and 2. 1 और 2। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं। Now दूसरे भाग को मत पढ़े, वो Psalm 1 में आ जाएगा. Blessed are those whose way is blameless. जिसका मार्ग निर्दोष है। आपकी चाल कैसी है? सोचिए, घर बैठ के आप सोच लो. आप विश्वासी भाई बहन पूरे भारत के घर में जरा सोच तो लीजिए, आपकी चाल खड़ी है कि नहीं. बोलते हैं मुंह के सामने, भाई साहब आप भी हमारे अगुवा हैं, पास्टर विल्सन आप हमारे लीडर हैं, आपके शिक्षक को पसंद है जैसे आप, लेकिन पीठ पीछे आप बुराई कर रहे हैं. आपकी चाल खड़ी नहीं है, आप धन्य पुरुष नहीं है. मैंने कहा आप धन्य पुरुष नहीं है, ये मतलब नहीं. यू मे हैव ए गुड सिंगिंग वॉइस, you may have a good singing voice, आप अच्छा गीत गा सकते हैं, अच्छी आवाज है आपकी, you may have administrative gifts, और आप अच्छा प्रबंधन कर सकते हैं, but if your walk is not blameless walk, लेकिन यदि आपकी चाल निर्दोष नहीं है, your ways are not blameless, आपके जो मार्ग है वो निर्दोष नहीं, you are cursed. आप श्रापित हैं। Opposite of blessed is cursed. और आशीषित होने का विपरीत जो है वो श्रापित होना है। But those who have a blameless way or blameless walk, they are blessed. लेकिन वे लोग जो निर्दोष मार्ग पर चलते हैं, निर्दोष उनका जीवन है, वे आशीषित हैं। Hallelujah. हालेलुया। Verse 2 में चले, वहां पर एक और आ गया. क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं। Those who keep
His testimonies are blessed people. और जो लोग उसकी गवाहियों को बनाए रखते हैं वे लोग आशीषित हैं। Hallelujah. Do you keep his testimony? क्या आप उसके वचनों को मानते हैं? Do you keep his testimony? क्या आप उसके वचनों को मानते हैं? यदि हम उसकी चितौनियों को नहीं मानते हैं, आप श्रापित हैं। आप श्रापित हैं। लेकिन जो उसकी चितौनियों को मानते हैं, वे धन्य हैं, वे आशीषित हैं। हालेलुया। We have a good God. हमारे पास एक भला परमेश्वर है। We have a good God. हमारे पास एक भला परमेश्वर है। He wants to call you blessed man. वो आपको आशीषित कहना He चाहता है। wants to call you a blessed woman. वो आपको एक धन्य स्त्री कहना चाहता है। What else? और क्या? जाइए Psalm 127 में आ जाएं। लोग क्लोज आ रहे हैं। 127. 127 verse 5. उसका 5। क्या ही धन्य है वह पुरुष हाँ। जिसने अपने तरकश को हाँ। उनसे भर लिया हो। Now, this is a good thing now. ये अच्छी बात है। I remember, this is almost some 50 years ago, a pastor came to my dad and he asked this question, Appachan, how many children we should have? This said, who has filled his quiver with them. और 30 साल पहले की बात है, एक पासवान अगर मेरे पिता से पूछे कि आखिर कितने बच्चे हमारे पास होने चाहिए, Then he quoted the scripture of 123, your children will be like a olive shoot around your table. और फिर उन्होंने भजन में से कई बातों को रखा, बोला कि तुम्हारे बच्चे उस जलपाई के पौधे समान होंगे जो तो मेज के चारों ओर लगाए जाते हैं। So my dad told, I remember that answer. मेरे डैडी ने ये कहा, टेबल आपके ऊपर सोचना है, छोटी टेबल रखनी है कि बड़ी टेबल आपका डिसीजन। और मैं बोल नहीं सकता। If you cannot take care of one child, how you can have 5 children? You decide what kind of table you need. किस प्रकार का मेज आपको चाहिए, आप उसका निर्णय लें। But those हिंदी में भी आ गया है, जवानी के लड़के होते हैं, क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया है। Now, there are many I have seen in America and especially in Holy Land, they have quiver of many different sizes. और अलग-अलग आकार के तरकश आते हैं। Some you can put only 2, कुछ ऐसे तरकश होते हैं जो 2 ही तीर आप रख सकते but हैं। I have seen some you can keep 15 to 20. लेकिन आप 15-20 तरकश भी, तीर भी रख सकते हैं, ऐसे तरकश भी। Jacob knew how many he should have in his quiver. तो अब आप खुद सोचिए कितना आपको चाहिए। याकूब को मालूम था, अब्राहम को मालूम था कितने हैं। You decide. I'm not going to pray that God will give you 5 children. मैं ये प्रार्थना नहीं कर रहा कि आपको 5 बच्चे परमेश्वर, लेकिन आप निर्णय लें। I know Franklin is getting so excited. He wants Jacob's blessing उत्साहित हो रहा है, याकूब की आशीष or चाहिए Abraham's blessing. और इब्राहिम की आशीष चाहिए। I will not pray that prayer, मैं ऐसी प्रार्थना नहीं करने के लिए, but I will pray, oh God, give them wisdom. लेकिन परमेश्वर They बुद्धि दे know how many children they should have, कितनी so संतान they can होनी meet their चाहिए needs. कि अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर पाएं। Hallelujah. हालेलुया। But blessed are those who have children. लेकिन धन्य है वो जिनके पास संतान है। You can write Psalm 128:1, but we'll go further because we have read already that. Go to Psalm 144. 144. 144 भजन में आ जाए। Verse 15, the 145, last scripture, 15b. जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है, वह क्या ही धन्य है। Blessed are the people whose God is the Lord. धन्य है वे लोग जिनका यहोवा परमेश्वर है। Hallelujah. I can say this morning, आज सुबह मैं ये बोल सकता हूँ, He is my God. वह मेरा परमेश्वर है, He is my Lord. वह मेरा प्रभु है, He is my Savior. वह मेरा उद्धारक है, He is my Redeemer. वह मेरा छुड़ाने वाला है, He is my friend. वह मेरा मित्र है। I am blessed. मैं आशीषित हूँ, I am blessed. मैं आशीषित हूँ। Number 19 and the last. और 19 नंबर जो है वो अंतिम है। I have not written, I was just looking the points here. मैं लिखा नहीं है। PowerPoint, so I know it's number 19. ये 19 नंबर है, मैंने पावरपॉइंट्स किए। 146 verse 5. 146। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक Yeah. याकूब का परमेश्वर है। Next.
और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। Blessed is the man whose hope is in the Lord. जिसकी आशा परमेश्वर पर है। Hallelujah. My hope is in the Lord. My hope is built on God. Nothing in this world. इस दुनिया की कोई बात नहीं, परंतु मेरी आशा केवल परमेश्वर पर ही I know everything in निर्मित this है। world is a sinking sand. मुझे पता है दुनिया में जो कुछ भी है वह दहने वाला रेत है। The moment you have a hope in God, I tell you are a blessed man. और यदि आपकी आशा परमेश्वर पर है, मैं कहूंगा आप आशीषित लोग हैं। My time is up. मेरा समय समाप्त हुआ। I never knew that we will go this far. मुझे नहीं पता कि इतनी सारी बातें हम देख लेंगे। So I know we will have blessed time next Sunday when I pick up Psalm 32 again. जब फिर से 32 भजन हम पढ़ेंगे, मुझे मालूम है हम आगामी रविवार में भी आशीषित हो जाएंगे। I brought 19 beatitudes from Psalm. भजन से लगभग 19 आशीष के वचन मैंने आपको दिए। My God is a good God. मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर I है। said, my God is a good मेरा God. परमेश्वर भला परमेश्वर है। He is teaching you. वह आपको सिखा रहा है। You can be blessed throughout your life here. अपने जीवन पर्यंत आप आशीषित हो सकते I हैं। said, you can be blessed throughout your life. अपने जीवन पर्यंत आप आशीषित हो सकते हैं। Are you happy today? क्या आज आप प्रसन्न हैं? Hallelujah, Jesus, thank you, Lord. Do you think you are privileged people? क्या आपको लगता है कि आप भाग्यशाली लोग हैं? I say all the time, I'm privileged. मैं सदैव ही कहता हूँ कि मैं आशीषित हूँ। I say I'm highly favored of God. मैं परमेश्वर द्वारा बड़ी कृपा मुझ पर हुई। I say highly favored of God. बड़ी कृपा मुझ पर हुई है। I'm highly favored of God परमेश्वर के द्वारा बड़ी कृपा मुझ पर हुई है। because He says you are blessed. क्योंकि वो कहता है कि आप आशीषित हैं। Let's pray now. आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर मेरे पुत्र मसीह यीशु के नाम से फिर से एक बार हम तेरे निकट आते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं रविवार की आराधना के लिए पिता कि आपने फिर से एक बार अपने वचन के द्वारा हमने से हर एक से बातें की। लेकिन तेरे आशीष की वचन आशीष की बातें हैं कि हम जब तेरे निकट आते हैं, तेरी उपस्थिति में जब हम रहते हैं, तुझे अपना यहोवा परमेश्वर कहते हैं, अपनी आशा तुझ पर लगाते हैं। जब हम धर्म के मार्ग में चलते हैं, अपनी गाहों को उस सिय्योन के उस मार्ग पर लगाते हैं, तेरी बातों के द्वारा हम केवल तुझसे आशीषों को पाते हैं। धन्यवाद तेरे वचन की गहराई के लिए जिसमें अपने दास के द्वारा आपने हमें लेकर गया पिता, एक नए विचार के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए वचन के प्रकाशन के साथ आपने हमें आशीषित किया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारी ये प्रार्थना है पिता कि संसार में चारों ओर एक तनाव का माहौल है, एक खतरे का माहौल है, होने पाए तेरे वचन की खूबसूरती हमारे मनों में भरने पाए, तेरे वचन की सुंदरता हमारे दिमाग में बसने पाए पिता, हम इसकी खूबसूरती में डूबने पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं वचन के लिए पिता, धन्यवाद दास के लिए जिन्हें वचन के अंतर ज्ञान के द्वारा उन्हें आशीषित किया और उनके द्वारा होकर पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा उन्हें हमसे बातें किया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, अपने दास को और भी आशीष से भर, अपने वचन की गहराई से भर, अपने वचन के पिता अंतर ज्ञान से भर पिता, किस रीति से अपनी कलीसिया को और पूरी दुनिया को वे आशीषित करने पाए प्रभु। हम धन्यवाद सुंदर वचनों के लिए पिता, सभा की शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे संग और साथ रहा। हम तेरे नाम का लाख लाख धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इस सर्विस में साथ जुड़े हैं पिता, उनमें से हर एक को आशीष कर, उनकी प्रार्थना विनती को सुन, जो आशीष के वचन हमने सुने हैं उनके जीवन में वे वास्तविकता बनने वाले। फिर से एक बार तेरी उपस्थिति में धन्यवाद करते हैं, तेरे वचन में धन्यवाद करते हैं, सुंदर आराधना में तुमने आशीष किया, पास्टर ने इस्तेमाल किया। हम धन्यवाद करते हैं पिता, जितने भाइयों ने यहाँ पर मदद की, अलग रीति से संगीत के द्वारा, पीए सिस्टम के द्वारा उन्हें भी आशीषित कर। फिर से एक बार सारा आदर महिमा जलाल केवल तुझे ही देते हुए, प्रार्थना से धन्यवाद करते हुए, उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुनो, ग्रहण कर सभी पिता। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ मसीह यीशु के द्वारा आगमन तक होती है। सब मिलकर बोले आमीन 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 आमीन।